Hello students, this is Sapna Sangh from Seth Jayaprakash Polytechnic Damla, and my today's topic is complex number. Okay, let us start with first know about the imaginary unit. Till now you have always been told that you can't take the square root of a negative number. If you use imaginary units, you can. That means first of all we must aware about what is this imaginary unit. Okay, let us study about this. The imaginary unit is I, or we called it as iota. Okay, and what is the value of this I or iota is the square root of -1, and it is used to write the square root of a negative number. Okay, yes, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हमेशा स्क्वायर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ओके, अगर हमें इमेजिनरी यूनिट के बारे में पता हो तो हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और वो इमेजिनरी यूनिट क्या है? आयोटा. और इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. और इसका जनरली यूज़ जो है हम कब करते हैं? जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं. Let us study about this one. Suppose we have been asked to find the square root of -3. Okay, so how can I write like this? This is -1 into under root of 3. Okay, and अभी आपको बताया गया है the square root of -1 is iota, and further this is equal to √3. So that means कभी भी हमें किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा, सो वी सिंपली अप्लाई आयोटा एंड देन √3. ये आयोटा कैसे आया? दैट आई हैव एक्सप्लेन हेयर एंड हेयर. ओके, सो इन दिस वे we can find the square root of an imaginary number. Let us see few example based on it. If iota is square root of -1, then iota square is equal to -1. ये iota square -1 के बराबर कैसे हुआ? ओके, सी iota की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है? यू स्क्वायर बोथ साइड. ओके, व्हेन यू स्क्वायर, सॉरी, okay, so square and under root get cancelled and you will have this -1 as the value of iota square. Similarly, if we find iota cube, so how can we write? iota square into iota. Okay, तो iota square की वैल्यू -1 into iota. In this way iota cube is equal to minus iota. Okay, next, if we find, similarly we can find the value of iota square. iota 4 iota 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? iota square into iota square, and that is equal to -1 into -1 will give you +1. Okay, similarly we can find again iota raised to power 5, so that comes out to be iota 4 into iota, and iota 4 की value 1 into iota. The answer is iota. In this way we can find other values of iota with higher power. Okay, so now we will find other values. Okay, so iota cube is equal to minus iota, iota 4 is 1, iota 5 is iota, iota 6 is minus iota, iota power 7 is equal to minus iota,
and iota 8 equal to 1. In this way we can find further values of higher power of iota. Okay, and how can we do this? If the power of iota is larger, for that the larger exponent, for larger exponent divide the exponent by 4. I repeat, आप जो हायर पावर आती है अगर आयटा की, तो उस पावर को आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से, एंड देन यूज़ द रिमाइंडर एज योर एक्सपोनेंट इंस्टेड। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वही आपने आयोटा की पावर बना देनी और उसकी वैल्यू पुट कर देनी। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू फाइंड दी आयोटा की पावर 23, what we will do? We divide 23 by 4. Okay, when we divide it by 4, we get 5 as a quotient and remainder as 3. I repeat, we get 5 as quotient and remainder as 3. So now I can write iota 23 is equal to iota की power 3. Okay, यूँ हम लिख सकते हैं। So और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। ओके, तो आयोटा 23 की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज़ माइनस आयोटा। ओके, अब हमें पावर जितनी मर्जी बड़ी देते रहें, व्हाट वी विल डू? वी सिंपली डिवाइड द पावर बाय 4 एंड व्हाट एवर बी द रिमाइंडर, ओके, वही आपने उस आयोटा किया एक्सपोनेंट देके एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा। ओके, so we'll take certain examples. Okay, in this question we have to find the iota की power, iota √3 whole power 2. ओके, सबसे पहले हम इंडिसेस का रूल लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में दो टर्म्स है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। सो यू हैव आयोटा स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट -3. ओके, सो दिस इज योर रिजल्ट. गॉट इट? सो विल टेक अनदर एग्जाम्पल. Solve this equation. Okay, first of all we have arranged this like 3x square is equal to -36, dividing by 3, so we'll get 12. x square की वैल्यू क्या आ जाएगी? -12. एंड नाउ अंडर रूट ऑफ x square is equal to अंडर रूट ऑफ -12. अब मैं यहाँ पे माइनस का अंडर रूट आ गया, सो विल सिंपली राइट आयोटा प्लस माइनस आयोटा √12 और दिस इज इक्वल टू +-2 आयोटा √3. ओके, तो हमने बस यही ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो हम वहाँ पे आयोटा लगा के और जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या एक्चुअली? ओके, तो कम्प्लेक्स नंबर इज़ नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, ए कम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ रियल पार्ट एंड imaginary part. Okay, so and how it is written in standard form? Generally कैसे लिखा जाता है? It is written like a plus iota b, where a is the real part and b is the imaginary part. Okay, ये आयोटा हमें ये इंडिकेट करता है कि इसके साथ जो भी नंबर लिखा है दैट इज़ इमेजिनरी. अब वो चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा, इट हार्डली मैटर्स. यू विल सिंपली सी जिस भी नंबर के साथ आयोटा लगा है दैट इज़ अ इमेजिनरी नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 आयोटा. इन दिस द रियल पार्ट इज़ 5 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज़ 4. ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. हम एक कम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं. ओके, नंबर 1 इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y. ओके, तो इसमें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कैसा लिखा जाएगा? z =
a plus iota a plus iota b, where a is the real part and b is the imaginary part. ओके अब आप अपने पॉइंट को चाहे x कॉमा वाई से लिखो, चाहे a कॉमा b से लिखो, जिस भी मर्जी से लिखो. द एब्सिसा पोर्शन इज योर रियल पार्ट एंड द ऑर्डिनेट पोर्शन इज योर इमेजिनरी पार्ट. एंड द अदर सिस्टम इज पोलर कोऑर्डिनेट्स. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप की बॉडी की जो मोशन है दैट इज सर्कुलर, इन दैट केस वी विल कंसीडर पोलर कोऑर्डिनेट्स. लेकिन अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट लीनियर है देन वी विल कंसीडर द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. तो इस केस में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसमें r मतलब होता है रेडियस एंड थीटा क्या होता है, वो रेडियस ने x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया दैट इज थीटा. और r एक्चुअल में क्या है, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस. ओके where r is the distance of point from origin and theta is the angle formed by radius with positive direction of x-axis. ओके तो आपने ये देखा भी होगा या अर्लियर क्लासेस में, ये आपका x-axis और ये आपका y-axis. मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ है तो ओरिजिन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ r और ये x थीटा एंगल बनाता है. हियर इट इज़. ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है दिस इज़ x एंड दिस इज़ वर्टिकल डिस्टेंस इज़ y. तो ये x होता है और ये y. ओके ये मैंने आपको दिखा दिया पोलर और रेक्टेंगुलर में. ओके नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. अब दो सिस्टम में हम पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं तो इनके बीच का रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. और ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे. पोलर मीन्स व्हेन यू हैव गिवन r एंड थीटा. ओके सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको एक्स वाई दिए हैं देन वी कैन फाइंड polar coordinates by using this formula. R is equal to under root of x square plus y square and theta is equal to tangent inverse y upon x. ओके तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें x और y दिया होगा. ओके नेक्स्ट इज कन्वर्जन. हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया है ये एक्चुअली एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस है. दैट मीन्स ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और पूछा गया है पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालिए. पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब r और थीटा. ओके सो बाय द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू x, व्हाट इज गिवन टू अस. x is equal to 1 and y equal to 1. ओके अब x और y की वैल्यू जब दी है तो हम r और थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा विल बी obtained बाय टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन बोथ इक्वेशंस. सो इन दिस वे वी हैव r is equal to under root 2 and theta is equal to tangent inverse 1. अब ये 1 था. 1 वैल्यू कब होती है 10 के टेबल में 45 पे, तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल, यू विल गेट थीटा एज 45 डिग्री. ओके इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r की वैल्यू हमें मिल गई है दैट इज़ √2. ओके √2 और ये जो है आपको एंगल दिया है 45 डिग्री. 45 डिग्री से रेडियन में बदलोगे सो विल गेट π/4. ओके तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखेंगे,
जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट कर दी √2, थीटा की जगह π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 इज द कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ओके, ये डिग्री से रेडियन में बदला हुआ है एंड देन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा in the complex form. Another question, express under root 2 comma 3 π/4 in rectangular form. अब यहाँ एंगल से एंगल हमें रेडियन में दिया है तो इट मीन्स दैट इज़ अ पोलर कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज़ गिवन आर एंड थीटा। आप चाहें तो थीटा को डिग्रीज में निकाल सकते हैं। ओके, तो अब आर और थीटा दिया है तो एक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमें ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा √2 cos 45 और y आ जाएगा √2 sin 45। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है cos 135 और sin 135। ओके, तो दैट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू √2 cos, अभी 135 था तो हम क्या करते हैं अपने एंगल को कन्वर्ट करते हैं छोटे एंगल में। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑलवेज टेक दी हेल्प ऑफ आइदर 180 और 360। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस टेक व्हेन यू ब्रेक अ बिग एंगल, आई मीन ग्रेटर देन 90, ब्रेक दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ आइदर 180 और 360। तो 180 इसके नियरेस्ट है तो हाउ कैन वी राइट 180 माइनस 45। अब 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो कॉस वहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज -√2 cos 45। ओके, और इसी तरह साइन 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन आप जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए बन जाएगा √2 sin 45. Now put the value of cos 45 and sin 45. So you will have x is equal to -1 and y is equal to 1, which is the rectangular coordinates, okay, of the given complex number. अब इसको अगर हमें लिखना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, ये -1 1 को अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा is the complex number in rectangular form. Okay, next we will study about the complex plane. ये complex plane है क्या? Plane means x axis और y axis. अब इसमें ये हमारे दो x axis दो axis हैं, one is x axis and this is y axis. ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y की पॉजिटिव है और ये y की नेगेटिव एक्सिस। ओके, तो इसमें जो x एक्सिस है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है दैट वी कंसीडर एज y एक्सिस। तो इसका मतलब जो भी y है दैट इज ऑल इमेजिनरी एक्सिस एंड x वट एवर बी द एक्सिस द रियल एक्सिस। नेक्स्ट, ग्राफिंग इन कम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ में, देन हाउ कैन यू डू? अगेन you can see this is x axis, y axis, so 4 directions of axis: positive x axis, negative x axis, positive y axis, negative y axis. Okay, next let us assume here are some complex number and we will plot in this plane. Okay, see to the first one. First one is -2, यानी रियल एक्सिस जो है वो नेगेटिव है लेकिन आपका इमेजिनरी एक्सिस क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, तो आपका पॉइंट यहाँ कहीं है। तो अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव 2 स्टेप चलिए, 1 और 2। ओके, और y की तरफ 5 स्टेप चलो, वो भी पॉजिटिव साइड, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, कौन सा? ये पहले वाला। लुक एट दिस। ओके, नेक्स्ट, अब ये है 2 पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये।
अब इसमें एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप चलो, 1 और 2, और 2 ही स्टेप वाई एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 और 2। ओके, तो आपका पॉइंट यहाँ होगा। लेट अस सी, यस हियर इट इज। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है दैट इज़ 4 - 3 आएगा, यानी आपका x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव। इट मीन्स x पॉजिटिव इस तरफ है और y नेगेटिव क्या है यहाँ पे। x 4 स्टेप चलना है, 1 2 3 और 4, और y 3 स्टेप लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 1 2 3। तो यहाँ कहीं बॉल जो है आपकी होगी। ओके ओके, सो इन दिस वे थर्ड पॉइंट हमने प्लॉट किया, and in this way we will find the next fourth point, that is -4 - 3 iota. You can see here x is negative, so this is the negative direction of x axis। 4 स्टेप चलें, 1 2 3 और 4। y भी नेगेटिव है तो y के भी 3 स्टेप चलें, 1 2 और 3। तो ये आपका पॉइंट है। In this way you can plot a complex number in the complex plane। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ टर्म हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, जिसमें से एक टर्म है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर obtained आफ्टर चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये ध्यान रखना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं तो रिजल्ट विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कैसे, टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए जेड ए प्लस आयोटा बी है। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है। व्हाट आई विल डू, आई विल ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, या इमेजिनरी पार्ट का साइन था पॉजिटिव, आई विल चेंज इट टू माइनस। तो ये इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड का कॉन्जुगेट है, और लिखा कैसे जाता है, जेड के ऊपर ये ऊपर लाइन होती है जिसे हम बार बोलते हैं, जेड बार। ठीक है, जेड बार मीन्स वी हैव चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अनदर क्वेश्चन, अगर जेड इज इक्वल टू -3 - 2 आइटा है तो जेड कॉन्जुगेट क्या बनेगा, यू विल चेंज अगेन द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट examples, find the conjugate of the complex number given below। 5 plus 2 iota, then -3 - 5 iota, third है 5 iota, and fourth is only 7। ओके, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें 2 पॉजिटिव है तो हम इसका साइन बदल देंगे, विल चेंज द साइन ऑफ दिस 2 आयोटा, सो दैट विल बिकम जेड इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर बनेगा -3 + 5 आयोटा। थर्ड का आंसर -5 आयोटा, दिस इज द कॉन्जुगेट। और फोर्थ का आंसर 7 ही रहेगा, बिकॉज देर इज नो इमेजिनरी टर्म, देर इज नो इमेजिनरी टर्म। ओके, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ओके, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर जेड जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन मॉडुलस का मतलब ये है जेड के दोनों तरफ दोनों लाइनें पड़ जानी चाहिए। मॉडुलस ऑफ जेड इज दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ये है, इट इज रियल पार्ट ए है, ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए complex number where A is the real part and B is the imaginary part of Z. Okay, next now I'll find the modulus of a complex number. So let me know what is the real part, -2, imaginary part is 5. Okay,
तो एज पर द फॉर्मूला it is the square root of square of real part plus square of imaginary part. In this way you will get root 29. ठीक है. Next, modulus of minus 6 iota. Now there is no real part. इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ही नहीं. You have only imaginary part and that is minus 6. तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है देन इट विल कम आउट टू बी रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज योर माइनस 6. तो इन दिस वे विल गेट 6. ओके. अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दूर है, ओके, विच ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, कौन ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक है. तो ये 6 है, ये रूट 29 है. आप जानते हैं 25 का रूट क्या होता है 5. ठीक है. तो इट्स 29. 6 तो है नहीं, 6 से कम ही है. तो दैट मीन्स जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, ये वाला, यानी -2 + 5 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू ओरिजिन. ओके. नाउ विल स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स number algebra. That means how to add two complex number or more than two complex number, multiply, divide, subtraction, all these operations we will study over the complex number. Say solve this expression. अब इस expression को solve करना, first of all we remove the brackets. That will become -1 + 2 iota + 3 + 3 iota. After doing this, now we will collect all the real part. Real part is what? -1 + 3. -1 + 3 is your real part. Similarly, plus imaginary part क्या है 2 iota and 3 iota. So now you add these two. So we will have 2 + 5 iota. कहने का मतलब ये है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो तो रियल पार्ट में जाके ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड हो सकता है. सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके, हाउ विल राइट, इट इज़ 2 - 3. लुक एट दिस, 2 - 3, ये तो हो गया रियल पार्ट. नाउ व्हाट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट इज़ -3 आइटा और ये वाला माइनस है ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +7 आइटा. ओके. So your relation will become 2 - 3 is -1 and -3 iota + 7 iota. माइनस माइनस 2 हो गया ना, तो दैट बिकम्स प्लस. तो +4 iota हमारे पास यहाँ आ जाएगा. इन दिस वे वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. अनदर क्वेश्चन. अब इसमें जितने भी रियल पार्ट हैं उनको एक ब्रैकेट में ऐड कर लो. क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 एग्जाम्पल सॉरी. तो व्हाट वी विल हैव, रियल पार्ट क्या है, इट इज़ -3 और +2. हेयर इट इज़ -3 + 2. ओके. ये रियल पार्ट ब्रैकेट में. देन इमेजिनरी पार्ट लिखो 2 आइटा माइनस आइटा. 2 आइटा माइनस आइटा इज़ आयोटा एंड अगेन -3 आइटा. ओके. तो ये कितना हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी -1 - 2 आइटा. सो हेयर यू हैव add or subtract the complex number. Next is how to multiply. Here iota minus iota into 3 plus iota. Now multiply these two. So we have -3 iota minus iota square. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात ध्यान रखना है कि एक तो कहीं भी माइनस स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए. दैट इज रिप्लेस बाय आयोटा. नंबर 2, आयोटा की पावर हद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 होनी चाहिए. If it is exceed from 1, then put its value like this. In this question it is -3 iota minus iota square. Now the power of iota is exceeding from 1. 1 से ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू पुट करो. iota square is what, -1. So it is -3 iota minus 1. So that comes out to be 1 - 3 iota. दो नेगेटिव मिलके प्लस हो गया तो +1 - 3 iota. ओके. नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन.
नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 2 को इस सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 आइटा को इस सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. सो नाउ वी हैव -12, then -4 iota, then 18 iota with negative sign with -6 iota का स्क्वायर. अब बाकी तो सारा ठीक है, यहाँ आइटा की पावर 1 से ज़्यादा हो गई तो पुट इट्स वैल्यू. सो वी हैव हेयर एज +6. ओके, तो दैट कम्स आउट टू बी -12 आइटा. ये 18 और 4 22 आइटा हो गए और माइनस माइनस +6 हो जाएंगे. नाउ व्हेन यू विल सॉल्व, so you have -6 -22 iota as an example. Okay, in this way you can multiply two complex number. Next is division. How will you divide the two? Here is an example. You can see 3 plus 11 iota is divided by -1 -2 iota. तो complex number में हम division कैसे करते हैं? By taking the conjugate of denominator. By taking the conjugate of denominator and then multiply the same factor in numerator as well as in denominator. जैसे -1 -2 आइटा का conjugate क्या होगा? It is -1 + 2 आइटा. तो -1 + 2 आइटा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया. So we have this expression. Now multiply the above expression. The first two brackets should multiply. So that comes out to be -3, then +6 iota, -11 iota and 22 iota square. And same in the denominator when you multiply, +1 -2 iota, then +2 iota and then -4 iota का square. Now power of iota is exceeding from 1. So put its value. iota square की value -1 होती है, तो यहाँ दोनों एक्सप्रेशन में पुट कर दो. So here is your expression. Now add all the real part. तो आप देख रहे हो 22 भी नेगेटिव है और 3 भी नेगेटिव है, तो that comes out to be -25 और imaginary part is -5 iota upon 5. Okay, so if I ask what is the real part, then your answer will be real part is -25/5 and imaginary part is -5/5. So that completes your question. Okay, so now you have, next is another question based on it. Find the value of x and y if 3x plus 2x minus y iota equal to 6 minus 3 iota. Please keep in your mind, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें लेफ़्ट साइड का रियल पार्ट है 3x और राइट साइड का रियल पार्ट है 6. इसी तरह इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट साइड का 2x - 6 है और इमेजिनरी पार्ट राइट साइड का है -3. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होगा और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो. तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो वी हैव 3x = 6. 3x = 6. रियल पार्ट 3x है यहाँ पे भी और यहाँ पे रियल पार्ट 6. बीच में कौन सा साइन? इक्वल टू लगाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2. इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को भी हमने किया. अब इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट इज 2x - y, here 2x - y is equal to -3. ओके, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है. सो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन x. सो वी हैव y = 7. ओके, यही आपसे पूछा था कि x और y की वैल्यू निकालें. Next is express this expression in a plus iota b. Means इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करो कि आप ये बता सको कि आपका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है. तो अगर आप ध्यान देखें, ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे एक डिवाइड. तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द अबव टू फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12, देन -3 आइटा प्लस 4 आइटा एंड माइनस आइटा स्क्वायर। ओके, और नीचे 5 प्लस आइटा एज इट इज़, कीप इट दिस एक्सप्रेशन एज इट इज़। अब आइटा स्क्वायर है गया, पुट वैल्यू आइटा स्क्वायर दैट इज़ -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 12 + 1 13, और यहाँ सिर्फ बचेगा आइटा, वो भी पॉजिटिव का, बिकॉज 4 आइटा जो है बड़ा है, अपॉन 5 प्लस आइटा। ओके, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, 2 मल्टीप्लाई हुए थे, 1 डिवाइड हुआ। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करके हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, दैट इज़ 13 प्लस आइटा। अब ये डिवीजन का केस है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना दिया, 5 प्लस आइटा, इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 5 माइनस आइटा। तो 5 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ओके, हियर सी ऑन द योर एक्सप्रेशन। सो मल्टीप्लाई 13 बाय 5 माइनस आइटा, तो ये कितना हो जाएगा 65 माइनस 13 आइटा, देन प्लस 5 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर अपॉन, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। तो in this way we will get this expression in which we can tell what is the real part and what is imaginary part. So in this case real part is 66 by 26 and imaginary part is 8 by -8 by 26. So this is all about complex number. Okay, thank you everyone and stay blessed. Thank you.